Hello everyone, welcome to my channel. Today our topic is the iteration method. This is the one of the method from a numerical method to solve the equations. It is also called as a fixed point iteration method. So let's start here. So see here, this is the equation f of x is equal to 0. Suppose we have the given equation is f of x is equal to 0, then we have to convert this equation in the form of phi of x. Phi of x is the rearrangement equation from this f of x. So we have to one check a condition, that is the phi dash x is less than equal to 1 at x is equal to x naught. X naught is our first assumption value. So at this value we have to check that this mod phi dash x value is less than 1. If this condition is satisfied, then we can apply the iteration method. So how we can apply this? So after this condition satisfied, we take a xn is equal to phi xn minus 1. By using this formula we take a successive approximation. So such kind of expression, that is x1 is equal to phi of x naught, x2 is equal to phi of x1. Okay, like this we have to write the equations. So the sequence of approximate roots x1, x2, xn, it converges to alpha. That means we have to take a value of alpha, that alpha means where we get the same answers, is taken as a root of the equation f of x is equal to 0. So this is alpha, that is your answer where we get the root of this equation. So these are the advantages of this method: easy to apply, simple calculations, good for computers, useful when direct solution hard. When we have to find the direct solution is hardly, then we can use this method. So what are the disadvantages? Depends on good choice of phi of x. So phi of x, the choice of phi of x, it is a very important in this this method, because the whole we have to apply, we have to check this equation, check this condition. So this phi of x is very important to choose. So it is maybe it is a divergence and slow convergence sometimes. Okay, so these are the advantage and disadvantage of this method. So if you understand this, the theory of this equation, we can continue with the question. So let's start with the question. So see here, this is the given equation. Find a real root of the equation x cube plus x square minus 1 is equal to 0, correct up to 5 decimal. So given equation is x cube plus x square minus 1 is equal to 0, and we have to find the answer up to 5 decimal. So let's start here. So given equation is f of x is equal to x cube plus x square minus 1. So let's check by error and trial. So for f of x is equal to 0, we get x 0 cube plus 0 square minus 1. So it is a minus 1. Next 1 for x is equal to 1 cube plus 1 square minus 1. So this is the 1 cube, 1 plus 1 2, 2 minus 1 is 1. So our root is lies in between 0 and 1. रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ इक्वेशन, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन अनदर फॉर्म, दैट इज वी कॉल्ड एज अ phi ऑफ x. सो कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आप अलग अलग वे से इसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है ये देखो. यहाँ पे केस फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन है हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द गिवन इक्वेशन. So if I write here x cube is equal to
So these two terms we take on the other side. So this one minus x square plus 1. Okay, so that means it is x cube is equal to 1 minus x square. So what we get, x is equal to this is the cube root. Okay, so cube root we can write as a 1/3, raised to power is 1/3. 1 minus x square raised to 1/3. Okay, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3. So this is your phi of x. Okay, if I consider this is your phi of x. So we have to take here phi dash. So what is the derivative of this using power rule? So 1/3 1 minus x square raised to 1/3 minus 1 into square root of this term is minus 2x. So this is 1/3 1 minus x square 1 minus 3 minus 2 by 3 into minus 2x. So we simplify this one, minus 2x upon 3 into 1 minus x square raised to 2 by 3. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट केस है. यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए. सो दैट इज़ वी हैव टू फाइंड x नॉट. सो x नॉट इट इज़ लाइज इन बिटवीन 0 and 1. x नॉट आपको कोई भी एक 0 और 1 के बीच का चूज़ करना है. सो दैट वन वी हैव टू टेक हियर x नॉट इज़ 0 plus 1 by 2, so that is a 0.5. So we choose x naught is a 0.5. तो आप 0 भी ले सकते हैं. 0 के लिए आपको -1 आती है, 1 के लिए 1 आती है और 0.5 के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है चेक करो. सो दिस इज़ द 0.5 क्यूब प्लस 0.5 स्क्वायर minus 1. So answer is minus 0.625 and so this number is nearest to the 0. इन दोनों के बावजूद अगर आप 0.5 है वो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है 0 के, इसलिए वी हैव टू चूज़ 0.5. अगर आप ये 0 और 1 लेना चाहे तो भी आप ले सकते हो. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक दिस कंडीशन विच वैल्यू इज़ देयर एट phi dash x, mod phi dash x at x is equal to x नॉट. तो मॉड फाई डैश एक्स की वैल्यू है 2x अपॉन 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 by 3. तो यहाँ पे आप x नॉट की वैल्यू 0.5, x नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 0.5 है, वो आप यहाँ पे चेक करो. सो पुट दिस वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.5. सो 2 into 0.5 अपॉन 3 into 1 minus 0.5 square raised to 2 by 3. So 2 into 0.5 it is a 1. So 3 into 1 minus 0.5 square. So see here 1 minus 0.5 square. So answer is 0.75. 0.75 raised to 2 by 3. So raised to 2 by 3. यहाँ पे आपको फर्स्ट स्क्वायर लेना है, बाद में उसका क्यूब रूट निकालना है. सो 0.75 का स्क्वायर है दिस वन 0.5625. देन यू हैव टू टेक अ क्यूब रूट. सो क्यूब रूट दैट इज शिफ्ट प्लस x3 आंसर. सो आंसर इज अवर 0.85 मल्टीप्लाई बाय 3. सो अगेन मल्टीप्लाई टू दिस आंसर बाय 3. सो सी हियर दिस इज द अवर आंसर 1 upon 2.4764. So let's see here 1 divided by answer. So final answer is 0.4038. So I will write here. So final answer is 0.4038. So this is our first case. यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में देखा है कि x क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन लिया था. अब आपको क्या करना है, अभी सेकेंड केस चेक करनी है कि सेकेंड केस में क्या आता है. दिस इज आवर फर्स्ट केस. तो सेकेंड केस हम देखते हैं. यहाँ पे मैं लिखती हूँ केस सेकेंड.
तो सेकेंड केस में हम क्या करें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर रखेंगे और बाकी के टर्म्स चेंज करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। सो दैट मीन्स इट इज राइट एज अ 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/2 इज इट। सो दिस इज अवर फाई ऑफ एक्स, यह हमारा फाई ऑफ एक्स बन गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है फाई डैश एक्स। सो फाई डैश एक्स क्या है हमारा, सो इट इज़ 1/2, पावर रूल और चेन रूल दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं यहाँ पे। सो इट इज़ अ 1 माइनस एक्स क्यूब, सो 1/2 माइनस 1, सो इट इज़ अ माइनस 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है -3x स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव। तो रीअरेंजमेंट करो तो ये क्या होगा -3x स्क्वायर डिवाइड बाय, ये पावर हम नीचे लिखते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। सो 2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/2। सो वी हैव टू पुट इट इन अ मॉड। तो मॉड में अगर हम लेते हैं और एक्स नॉट की वैल्यू क्या पुट करनी है 0.5, तो ये क्या होगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू हाफ। तो अगेन एक्स नॉट के लिए इसकी वैल्यू क्या है वो हम चेक करेंगे। सो सी है, दिस इज़ द इक्वेशन हमारा क्या है 3 इंटू 0.5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 0.5 क्यूब रेज टू हाफ। ओके, तो चेक करते हैं हम क्या है। सो इट इज़ अ 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, सो न्यूमरेटर इज 0.75। ओके, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करो, 1 माइनस 0.5 क्यूब is this one, take a square root into 2, so denominator is 1.8708, ये हमारा डिनोमिनेटर है। सो फाइनल आंसर 0.75 डिवाइडेड बाय 1.8708, सो अवर आंसर इज, फाइनल आंसर इज here 758708, so final answer is 0.4008. So this is our final answer 08. Okay, so next हम कैलकुलेट करेंगे केस 3। तो केस 3 क्या आता है देखो यहाँ पे, केस 3 में हम क्या करेंगे, अब ये हमारा इक्वेशन था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचता है एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1 प्लस 1 और ये डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1। सो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारा एक्स है। सो एक्स हम कैसे लिख सकते हैं इसे, so it will write as a x plus 1 raised to -1/2. so this is your phi of x. so phi dash x क्या होगा हमारा, so -1/2 x plus 1, so -1/2 -1, so that is -3/2 और x का डेरिवेटिव 1 है। so at phi dash x at x naught is equal to 0.5, तो यहाँ पे मॉड्यूलस की वैल्यू आती है 1/2 x plus 1 3/, ओके। तो यहाँ पे 0.5 की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर क्या आता है चेक करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 0.5 प्लस 1 रेज टू 3/2, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1/2 इंटू 0.5 प्लस 1, सो इट इज़ 1.5 रेज टू 3/2। तो कितना आता है देखो यहाँ पे 1.5 क्यूब स्क्वायर रूट इंटू 2, तो ये हमारा आंसर है 3.6742। सो 1 डिवाइडेड बाय 3.6742, सो फाइनल आंसर इज 0.2721, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 0.2721, ओके। तो यहाँ पे देखो
थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात है यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वेशन था फर्स्ट वाला, इसके साथ इस फर्स्ट केस में हमारा आंसर क्या बना था, ये 0.4038। सेकेंड केस में हमारा इक्वेशन का अरेंजमेंट क्या था, ये 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू हाफ। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, ये। ठीक है, अब हमने थर्ड अरेंजमेंट किया, ये वाला कौन सा, ये वाला हमने थर्ड अरेंजमेंट किया, और इसका हमारा आंसर क्या है, एट 0.5 के लिए 0.2721। तो यहाँ पे देखो ये 0.27 है, 0.4 और 0.4। तो यहाँ पे इन तीनों में 0 के नज़दीक वैल्यू कौन सी है, तो ये वैल्यू है आपकी नज़दीक वैल्यू, तो इसे हम चूज़ करेंगे एज अ फाई ऑफ एक्स। तो यही सिर्फ एक कंडीशन है यहाँ पे आपको जो चेक करनी होती है कि कौन सा फाई डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स नॉट, दैट वन इज़ नियरेस्ट टू द ज़ीरो। कौन से फाई डैश की वैल्यू एट पॉइंट एक्स नॉट के पॉइंट के लिए 0 के नज़दीक है, वो आपका होता है फाई ऑफ एक्स। तो अवर फाई ऑफ एक्स इज दिस वन। ओके, आपको सिर्फ ये पार्ट जो है वो अच्छे से करना है, इसके बाद पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें 5 डेसिमल तक आपको आंसर निकालना है। अभी आपका फाई ऑफ एक्स है 1/√x+1। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 1/√1 + x, so this is your phi of x. So phi dash x at x naught is equal to 0.5, this value is less than 1 and this is also nearest to 0. सभी लेस देन 1 है, लेकिन कौन सी उसमें से चूज करें जो 0 के नज़दीक हो। So that's why we have to choose that phi of x is equal to √1/x. So therefore we choose phi of x is equal to 1/√1 + x. Okay, so let's start the iteration part. So first x1 हमारा फॉर्मूला क्या है, xn is equal to phi of xn - 1, यह हमारा फॉर्मूला है। So x1 is equal to phi of x0. Okay, x0 is a 0.5. So put here 1/√1 + x0. So that is 1/√1 + 0.5, and that one is 1 + 0.5 square root. So it is this one. So 1 divided by answer. So our answer is 0.816496। हमें 5 डेसिमल तक निकालना है। सो दिस वन आंसर। सो नेक्स्ट x2 is phi of x1. So 1/√1 + x1. So it is 1/√1 + 0.816496. So see here, 1 plus answer, this is, so square root is this one, again 1 divided by answer. So our answer is 0.74196. Okay, so next x3 is equal to phi of x2. So 1/√1 + x2. So 1/√1 + 0.74196 is equal to, so यहाँ पे हम ऐड करेंगे। So 1 plus answer square root answer 1 divided by answer. So final answer is 0.75767. Okay, so next x4 is equal to phi of, जब तक आपके ये जो आंसर्स 5 डेसिमल तक रिपीट नहीं होते आंसर्स, तब तक आपको ये सॉल्व करते रहना है। x3 is equal to 1/√1 + x3. So it is 1/√1
1 plus 0.75767. So it is here 1 plus answer. So it is square root again 1 divided by answer. So answer is 0.75427. Next, x5. So x5 is equal to phi of x4. So 1 upon square root of 1 plus x4 is equal to 1 upon square root of 1 plus 0.75427. So 1 plus answer, so square root again 1 divided by, okay, so this is our answer, 0.75500. So next x6, phi of x5. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 0 के बाद 6 है, तो इस 0 का आप कन्वर्ट कर सकते हो एज अ 1. यहाँ पे आप एज अ 1 भी ले सकते हो, एज अ 0 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है. लेकिन अगर आपको 5 डिजिट तक लेना है तो यहाँ पे तक तो लेना ही है, लेकिन ये सभी 0 ही आ रही है और ये अप्रॉक्सीमेट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे 1 के लिए. सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.75501. So 1 plus answer square root of and 1 divided by, so this is our answer. This is 4849, 75 4849. Okay. Next x7. x7 is a phi of x6, so that is square root of 1 plus 0.754849. So 1 plus answer square root 1 divided by, so it is 0.754883. ओके. नेक्स्ट x8. यहाँ तक देखो अभी 4 डिजिट तक हमारा आंसर रिपीट हुआ है. लास्ट अभी है phi ऑफ x7. सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.754883. सो 1 प्लस answer square root 1 divided by, so see here answer 75486. So one more time I will calculate this one. So 1 plus 0.75486 square root 1 divided by, so this is our answer 7848782. okay. So x9 phi of x8 is equal to 1 upon square root of 1 plus 0.754876 is equal to 1 plus square root, so this is our answer 0.75487. ओके. तो यहाँ पे ये हमारे दो आंसर्स
करेक्ट है अप टू 5 डेसिमल। देखो यहाँ पे क्या आंसर मिला है हमें 0.754877 0.754877। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आपका यहाँ पे अगर आप 5 डेसिमल तक पहले से ले रहे हो तो यहीं पे आपका आंसर मिल सकता है कि 8 भी आ जाए। सो दैट वन आल्सो करेक्ट एंड दिस वन आल्सो करेक्ट। ओके, तो डिजिट के लिए ये थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आपको 5 डिजिट तक आपका आंसर आना चाहिए। सो देयरफॉर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन is 0.754877। so this is our final answer। तो एक बार आप फिर से देख लो ये क्या क्या किया हुआ है। आपको यहाँ पे मेन पार्ट जो है वो फाई ऑफ एक्स का है कि फाई ऑफ एक्स आप कौन सा चूज करते हो उस पर आपके सभी इटरेशंस डिपेंडेंट है। तो आपको अच्छे से फाई ऑफ एक्स चूज करना है। ये जो आपका केस 1 केस 2 केस 3 का पार्ट है वो आपको रफली कैलकुलेट करना है। इसमें बहुत सारा टाइम जाता है, तो इसलिए वो आपके कैलकुलेशंस फास्ट होने चाहिए। तो ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो 10 मार्क्स का है, तो इजीली कूल माइंड से आपको ये सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। प्लस माइनस इसमें बहुत सारे बच्चों की गलती होती है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। तो इटरेशंस जो है वो आपको जितने निकाले, अगर आपको इटरेशंस बोले हैं निकालने के लिए 5 इटरेशंस 4 इटरेशंस, तो आपके कैलकुलेशंस कम हो सकते हैं। तो 4 इटरेशन होगा, 3 इटरेशन, 3rd इटरेशन, 2nd इटरेशन, तो ये इटरेशंस है। और अगर अप टू 5 डेसिमल बोला गया है तो आपको आंसर जो है वो 5 डेसिमल तक सेम आना चाहिए। करेक्ट अप टू 5 डेसिमल बोला गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, इस मेथड में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।